Good morning, students. Let's we do the second sum in redemption of preference shares. So, whenever we have redemption of preference shares, we always given the balance sheet and plus we have given the adjustment. So, let's we analyze the balance sheet. This is our question number 2. Following is the balance sheet of Asha Limited as on 31st March 2021. So, liability side and asset side. Liability side we have given 2000 10% redeemable preference shares, which is fully paid up, amount 2 lakhs. So, these 2 lakhs we have to refund to the preference shares holder. Those are redeemable preference shares. After that, we have the 1 lakh equity shares of 10 each, total amount 10 lakhs. That is also fully paid up. We are doing the redemption of preference shares, so we are not concerned with the equity shares. After that, security premium we have 35,000. This amount we use if we require the amount. Profit and loss account 4,50,000. This is a divisible profit. We can use this amount for the purpose of redemption of preference shares. After that, creditors 2,58,000. So in this way we have total 19,43,000. After that, we have asset side fixed asset 15,75,000. After that, we have the bank 2,18,000. After we have the investment 1,50,000. उसका market price कितना है 1,90,000 and total we have got 19,43,000. So this is our balance sheet. Let's see the adjustment. What adjustment says that? So adjustment says that on the above date, the director of the company took the following step to redeem the 10% preference shares at a premium of 5%. So these shares we have to redeem. Which shares? These 2 lakhs we have to redeem. But we are going to redeem 10% premium. So we are going to redeem 5% premium. So 5% हम लोग उसको ज़्यादा देने वाले हैं. So 2 लाख के ऊपर 5 लाख कितना होगा 10,000. So 2 लाख हमको देना है, ऊपर से 10,000 एज अ प्रीमियम उनको ज़्यादा देना है. After that, company issue 4,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share for the purpose of redemption of preference shares. So for the purpose of redemption of preference shares, we issue the shares. How many shares we issue? 4,000 equity shares. एक का प्राइस कितना है 10. So 4,000 into 10 कितना मिलेगा 40,000. ऊपर से हम लोगों ने प्रीमियम जमा किया कितना 2. So 4,000 into 2 कितना होगा 8,000. So 40,000 nominal value 8,000 premium value we will receive 48,000 for the purpose of redemption of preference shares. After that, we have investment was sold at market price. अपने पास investment है, we have sold. Investment कितना है 1,50,000. We sold market price. Market price कितना दिया 1,90,000. So we will pass entry for that. Investment sold. After that, all the payment were made to the preference shares holder except those holding 100 shares who could not be traced. हम लोगों ने सबको अमाउंट दे दिया, लेकिन हम लोग को एक आदमी था उसके पास 100 शेयर्स से हम लोग उसको दे नहीं पाए बिकॉज हम लोग को मिला नहीं. सो डैट विल डू द एडजस्टमेंट. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशा लिमिटेड. हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स. सो रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस होने के बाद को अपने को बैलेंस शीट दिखाना है. दैट वी ऑल्सो वी डू. सो लेट्स वी फर्स्ट पास जनरल एंट्री. उसके पहले छोटा सा वर्किंग नोट करते हैं. CRR that is known as capital redemption reserve is equal to nominal value of preference shares less fresh issue of shares. So इसमें आप लोग कितना शेयर इश्यू करना है 2 लाख. गिवन इन द क्वेश्चन 2,000 का था 100 इज 2 लाख अपना इश्यू करना है. दैट नॉमिनल वैल्यू. हम लोगों ने क्या किया बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. हम लोगों ने शेयर इश्यू किया. कितने का शेयर इश्यू किया 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. So 40,000 with a premium कितना 2. So see the second adjustment 4,000 equity shares issue at 10 each with a premium 2. तो उसके बाद अपने को कितना मिला 40,000. So 40,000 4,000 to 10 issue of equity shares 40,000 मिला. तो कितना अपने को कम गिरा 1,60,000. This 1,60,000 we will take from the profit and loss account and we will transfer to CRR. So whenever in question fresh issue of shares given and out of profit how much we
यूज दैट इज नॉट गिवन दैट वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस। तो बैलेंस फाइंड आउट के लिए हमेशा ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स माइनस फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। सो हम लोग को देना है 2 लाख गिवन इन द बैलेंस शीट। हम लोग को एज पर द एक्टिविटी नंबर 2 हम लोगों ने कितने का शेयर इशू किया? 40,000 का। तो कम कितना गिरा? 1,60,000। इसका मीनिंग हम लोग ये 1,60,000 कहाँ से लेने वाले हैं? फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट लॉस में कितना बचा है? 4,50,000। उसमें से हम लोग कितना लेना है? 1,60,000। तो उसका भी हम लोग एंट्री पास करेंगे। नाउ लेट्स सी जनरल एंट्री 1 बाय 1। वी ऑलवेज पास फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट सोल्ड। आपने कहा इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,50,000। हम लोगों ने बेचा कितना? 1,90,000। दैट्स द मार्केट वैल्यू। तो 1,50,000 का था, 1,90,000 में बेचा, तो हम लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000। एंड 40,000 इज द प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 बिकॉज बैंक विच अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से डेबिट वॉर्स कम्स इन, क्रेडिट वॉर्स goes out. So bank account debit side 1,90,000. After that to investment कितना? 1,50,000 face value. Face value कितना था? 1,50,000. And we got profit. How much? 40,000. So big investment were sold at market price. So market price 1,90,000. Face value 1,50,000. We got profit 40,000. After that second redeemable preference shares capital account debit कितना? 2 लाख. Because इतना आपने को क्या करना है? रिफंड करना है। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। सो हम लोग क्या लिखेंगे? रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख। उसके ऊपर हम लोग कितना दे रहे हैं? प्रीमियम 5%। सो 5% ऑन 2 लाख कितना होगा? 10,000। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 10,000 एंड 2 प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर, दोनों को मिला कितना? 2,10,000 बीइंग 5,000 रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ बीइंग नॉट 5,000 2,000। यहाँ पे कितना होगा? 2,000 redeemable 100 each with a premium of 10%. With a premium of 10%. So this is it. After that, we have the issue of equity share का जनरल एंट्री। हम लोगों ने शेयर इश्यू किया कितने का? 40,000 का, उसका एंट्री। सो बैंक अकाउंट कितना मिला? 48,000, क्योंकि इक्विटी शेयर का कितना था? 40,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मिला? 8,000। वी इशू द शेयर्स कितना? 4,000। एक का वैल्यू कितना था? 10। सो 4,000 इंटू 10 40,000, ऊपर से 2 पर शेयर प्रीमियम। सो 4,000 इंटू 2, 4,000 इंटू 2 कितना? 8,000। वो पैसा मिला, दैट वी ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट एंड दैट स्पेशल अकाउंट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो जितना भी प्रीमियम का पैसा आता है वी ऑलवेज ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो उसको मैं क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट में कितना? 8,000। सो टोटल मिला कितना हुआ? सो वंस अगेन बैंक अकाउंट 48,000, टू इक्विटी शेयर्स 40,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000 बीइंग मनी रिसीव ऑन 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। सो 4,000 इंटू 10 40,000, प्रीमियम कितना है? 2। सो 4 आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। जो हम लोग प्रीमियम देने वाले हैं कितना? 10,000, दैट इज टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको हम लोग ने एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया? प्रॉफिट एंड लॉस में से लाया। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स 10,000। जो हम लोग प्रीमियम देने वाले थे वो कहाँ से लाया? प्रॉफिट में से लाया। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। सो दिस इज एंट्री। नाउ आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में CRR, जितना भी पैसा हम लोग ने लिया कहाँ से? प्रॉफिट में से। कितना लिया? 1,60,000। कैसे पता चला? वी हैव डन वर्किंग नोट। सीधा वी हैव डन वर्किंग नोट। यहाँ से CRR इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन प्रिफरेंस शेयर माइनस फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। 2 लाख माइनस 40,000 1,60,000। तो ये यहाँ से लिया था। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR 1,60,000 1,60,000। आफ्टर दैट प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा 1,99,500 1,99,500, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट था हम लोग बीइंग अमाउंट पे टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर,
लेकिन 100 को हम लोग भर नहीं पाए. सो एक्सेप्ट 100 रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स. एक का प्राइस कितना था 100. सो 105. 100 इज अ नॉमिनल एंड 5 इज अ प्रीमियम. सो 105. सो 10,500 कैसे मिला 10,500. 105 इंटू 100 और 105 कैसे मिला 100 प्लस 5. 5 क्या है प्रीमियम है, 100 क्या है नॉमिनल वैल्यू है. सो दोनों को मिलाकर 100 प्लस 5 105. 105 इंटू 100 10,500 हम लोग भर नहीं पाए. सो क्या करेंगे 2,10,000 माइनस 2,10,000 माइनस 10,500 1,99,500. 1,99,500. In this way we paid the amount to the preference shares holder except 100 shares. So after that we have to prepare the balance sheet. So balance sheet के पहले हम लोग क्या बनाना मालूम है, नोट टू अकाउंट. पहले क्या करना है नोट टू अकाउंट. हम लोग सब वर्किंग नोट डिटेल में लिखेंगे. सो पहला शेयर कैपिटल ऑलवेज, हाँ पहला ऑलवेज शेयर कैपिटल 1,04,000. अभी ये पहले कितना था 1 लाख, अभी कितना हुआ 4,000. सीधा बैलेंस शीट, सीधा बैलेंस शीट देखो कितना था 1 लाख बिफोर द रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स वी इश्यू 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो उतना शेयर्स बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया उतना शेयर्स अपना बढ़ गया. कितना 1,04,000 इंटू 10. 1,04,000 इंटू 10 तो कितना हुआ 10,40,000. सो शेयर कैपिटल में आएगा 10,40,000. आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था पहला 35,000. हम लोगों ने जो शेयर इशू किया उसके ऊपर हम लोगों ने कितना जमा किया 8,000. सो 35,000 8,000 प्लस 8,000 43,000. तो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट बढ़ गया. आफ्टर दैट CRR 1,60,000. हम लोग ये कहाँ से ट्रांसफर किया फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू CRR 1,60,000. सीधा वर्किंग नोट हम लोगों ने जो किया ना वर्किंग नोट 1,60,000. ओके. आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,50,000 था. 40,000 क्या मिला प्रॉफिट मिला. ये प्रॉफिट कहाँ सा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड. 1,90,000 का था, 1,50,000 का था, 1,90,000 में बेचा. सो 40,000 प्रॉफिट, तो 40,000 यहाँ पे ऐड कर दिया. माइनस 10,000 माइनस 1,60,000. ये 10,000 फॉर द पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,60,000 फॉर पेमेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. सो बचा कितना 3,20,000. आफ्टर दैट टोटल वी गॉट 5,23,000. करंट लायबिलिटी 2,58,000 प्लस 10,500. ये पैसा हम लोग को देना है जो शेयर होल्डर है उसको. सो 10,500 उसका, दोनों को मिलाकर 2,68,500. आफ्टर दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो 2,80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 48,000 माइनस पेड किया 1,99,500. 2,56,500. कैश अवेलेबल इज गिवन इन द बैलेंस शीट 2,80,000. हम लोगों ने 1,90,000 में बेचा क्या इन्वेस्टमेंट, तो पैसा मिला इसमें ऐड कर दिया. 40,000 का पैसा मिला फॉर द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो भी इसमें ऐड कर दिया. वहाँ पे पेमेंट किया 1,99,500. सो बचा कितना 2,56,500 अंडर द करंट लायबिलिटी. दिस इज कॉल्ड नोट टू अकाउंट. अभी क्या करना है ये प्रॉपर अपना शेड्यूल में बैलेंस शीट बना के उसमें डालना है. सीधा शेयर होल्डर फंड 10,40,000 फ्रॉम द नोट्स टू अकाउंट. शेयर कैपिटल कितना मिला 5,23,000. आफ्टर दैट रिजर्व एंड सरप्लस 2,68,500 टेकन फ्रॉम नोट टू अकाउंट. ये सब अमाउंट. सो टोटल मिला 18,31,500. ओके. सो दिस इज टोटल वी गॉट 38,500. सो So in this way we prepare the balance sheet of the liability side. So practice the sum.